دنیا میں جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے ان سب کو آداب کے ساتھ میرا سلام، بہت ساری خوشیوں اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ ایک پیغام، جی ہاں، وہی بات ایک نئے انداز میں۔ اشفاق احمد کے ناول زاویے سے لیا گیا ایک چیپٹر، شک۔ میں ایک بہت ضروری اور اہم بات لے کر گھر سے چلا تھا، لیکن اسٹوڈنٹ یوتھ تک پہنچنے سے پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا جس سے میرا سارا ذہن اور آپ سے بات کرنے کا سوچا ہوا انداز ہی بدل گیا۔ سب کچھ تبدیل ہو کر رہ گیا ہے، اور جو بات میرے ذہن میں تھی وہ بھی پھیل کر ایک اور جگہ پر منعقد ہو گئی ہے۔ میں جب گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے ہمارا ایک نیا ملازم جو گاؤں سے آیا ہوا ہے، اس کم سن کے ہاتھ کے ساتھ ایک چھوٹی سی رسی باندھ کے اسے چارپائی کے پائے کے ساتھ باندھ کے بندر کی طرح بٹھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی، اس نے میرے پرس میں سے ایک 500 کا، 2 100 کے اور 3 نوٹ 10 روپے کے چرا لیے ہیں، اور اس نے یہ 730 روپے کی چوری کی ہے۔ یہ ابھی نیا نیا آیا ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھو صاف بے ایمانی جھلکتی ہے۔ میں نے کہا، مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ کہنے لگی، نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، جب یہ آیا تھا تب اس کے کان ایسے نہیں تھے، اور اب جب اس نے چوری کر لی ہے تو اس کے کانوں میں فرق پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، دیکھیے، کہ آپ شک و شبے کی بات کرتی ہیں، اس حوالے سے آپ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ انہوں نے کہا، نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے۔ میں نے کہا، دیکھو، اس پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، خدا کے واسطے اسے چھوڑ دو۔ تو کہنے لگی، میں اسے کچھ کہوں گی تو نہیں، اور نہ ہی اسے کوئی سزا دوں گی، لیکن میں نے اسے باندھ کے اس لیے بٹھایا ہے کہ اسے اندازہ ہو کہ ایک اچھے گھرانے میں جہاں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو رہا ہے، اس نے کس قسم کی غلط حرکت کی ہے۔ ابھی ہم اس گفتگو میں مشغول ہی تھے کہ میرا چھوٹا بیٹا گھر آیا، اور اس نے آتے ہی پکار کر کہا کہ امی، آپ تھی نہیں اور مجھے باہر جانا تھا، تو میں نے آپا کے پرس سے 720 روپے کے قریب رقم لی تھی، یہ آپ واپس لے لیں۔ اب اس کی ماں نے تو وہ پیسے تو پکڑ لیے اور لوٹ کے اس بندر یعنی کہ لڑکے کی طرف نہیں دیکھا جو ہاتھ پر رسی بندھوا کر چارپائی کے پاس بیٹھا تھا، اور میں بھی شرمندہ کھڑا تھا، لیکن مجھ میں تھوڑی سی ایسی تمکینت ضرور تھی کہ جیسے ایک چھوٹے لیول کے بادشاہوں میں ہوا کرتی ہے۔ میں نے کہا، بتائیے۔ وہ کہنے لگی، دیکھیے، مجھے تو تقریباً اس لڑکے کی حرکت ہی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ شک و شبہات اور ظن میں ایسے ہی ہوا کرتا ہے، اور اس میں آدمی بغیر کسی منطق کے، بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی الجھن کے الجھ جاتا ہے، اور اکیلا فرد ہی نہیں، قومیں اور ملک بھی اس میں الجھ جاتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک ملک کو دوسرے ملک پر شک پڑ گیا کہ اس نے میرے خلاف کارروائی کی، اور تاریخ کے واقعات اس کے شاہد ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ اس ملک نے دوسرے پر حملہ کر دیا، بغیر سوچے سمجھے، ثبوت حاصل کیے، ہزاروں لاکھوں جانیں ختم کر دیں۔ میں جب اسٹوڈنٹ یوتھ آ رہا تھا تو بات آپ سے کچھ اور کہنی تھی، لیکن مجھے اپنی آپا صالحہ یاد آ گئیں۔ وہ ہم سے عمر میں ذرا سی بڑی تھیں، اور ہم جب BA اور MA میں تھے تو اس وقت ان کی شادی ہو چکی تھی، اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ ولایت چلی گئیں اور وہاں ایک عرصے تک رہیں۔ جب دبئی وجود میں آیا تو پھر وہ لوگ دبئی آ گئے،
यहाँ उन्होंने कुछ सरकारी और कुछ नीम सरकारी काम किए। लौटकर वो फिर विलायत चली गई और वहाँ जाकर उन्होंने अपना वही पुराना काम संभाल लिया जो वो अपनी कंपनी में करते थे। एक रोज किसी अंग्रेज खातून ने सालिया आपा को बताया कि अगर प्लेटिनियम के जेवरात को मोटे बाजरे के आटे में रखा जाए तो इनकी दक चमक में बड़ा इजाफा होता है और ये बहुत साफ सुथरे हो जाते हैं, और बस ऐसा इलाज और नुस्खा है कि इससे बेहतर तरीका प्लेटिनियम के जेवरात के लिए अभी तक नहीं आया। अब जाहिर है कि ख़वातीन की कॉस्मेटिक्स और जेवरात से गहरी दिलचस्पी होती है और वो इनकी बात ज़्यादा गुफ्तगू करती हैं। आपा सालिया को भी इस खातून की बात बड़ी दिल को लगी। चुनाचा उन्होंने बाजरे का आटा हासिल किया और इसमें अपने कान के 2 बाले दबा दिए। सुबह उठकर उन्होंने आटे की पुड़िया खोली और वो हैरान रह गईं कि आटे में सिर्फ एक ही बाला था और दूसरा बाला मौजूद ही नहीं था। अब वो बड़ी परेशान हो गईं क्योंकि प्लेटिनियम का बाला कुछ कम कीमत का तो होता नहीं। इस कमरे में सिवाय उनके और अरशद भाई उनके खाविंद के कोई था भी नहीं। अब जब अरशद भाई गुज़ल खाने से शेफ बनाने के बाद बाहर निकले तो आपा सालिया कहती हैं कि मुझे पहली मर्तबा बावजूद इसके कि वो मेरे खाविंद हैं और हमारी शादी को 21 बरस हो गए हैं, लेकिन वो मुझे चेहरे से एक चोर नजर आए और ऐसे महसूस हुआ कि उन्होंने रातों रात वो बाला चुरा लिया है और वहां पहुंचाने की कोशिश की है जहां मेरी मंगनी से पहले इनकी किसी दूसरी रिश्तेदार लड़की के साथ मंगनी तय हो रही थी। और वो लड़की, जाहिर है अब तो वो औरत हो चुकी होगी, लंदन आई हुई थी और इसका टेलीफोन अरशद साहब को आया था, जिसमें इसने अरशद को बताया था कि मैं और मेरा खाविंद लंदन आए हुए हैं और हम मिलना चाहते हैं, बताइए हम कब आ सकते हैं। अब सालिया आपा पक्का यकीन हो गया था कि ये बाला सिवाय अरशद के और किसी ने नहीं चुराया, क्योंकि कमरे में और कोई था ही नहीं। चुनाचा 3-4 रोज उन्होंने बड़े कर्ब की कैफियत में गुजारे और जब वो खातून जिनसे शायद अरशद भाई की शादी हो जाती, क्योंकि दोनों घरानों में के दरमियान हाँ भी हो गई थी, लेकिन किसी वजह से वो हाँ ना में तब्दील हो गई। वो अपने खाविंद के साथ अरशद भाई से आकर मिली तो आपा सारा वक्त टिक टिकी बांधकर अरशद भाई के चेहरे की तरफ देखती रहीं और इन्हें अरशद साहब के चेहरे पर से भी ऐसे आसार वाज़े नजर आ रहे थे कि उन्होंने बाला चुराया है और इस खातून को दे दिया है या इसको बाद में पहुंचा देंगे। तब अरशद भाई और सालिया आपा के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज हाइल हो गई और वो शक व शुबे में जिंदगी बसर करने लगे। बावजूद इसके कि अरशद भाई बार बार पूछते थे कि तुम्हारी तबीयत पर मुझे कुछ बोझ सा लगता है, लेकिन सालिया आपा नफ़ी में सर हिला देती थी और कहती खैर जो होना था हो चुका, लेकिन उन्हें अपने कीमती बाले के गुम होने का अफसोस था। अरशद भाई को भी इस बात का बहुत अफसोस था कि वो बाला अगर गुम हो गया है तो इसे तलाश किया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि आपा की नज़र में चोर वो खुद थे, इसलिए तलाश करने में अरशद भाई की कोई मदद नहीं करती थी। 5वें रोज इस कमरे से थोड़ी सी बदबू के आसार पैदा हुए। शाम तक वो बदबू काफी बढ़ गई। फिर ये ढूंढिया पड़ी कि वो बदबू कहाँ से आ रही है। चुनाचा सारे कोने खुदरे तलाश किए गए। एक बड़ा सा कालीन जो कि अखबारों के ऊपर पड़ा हुआ था और पुराने अखबारों की टोकरी इस पर औंधी लेटी हुई थी। जब वो उठाकर देखा गया तो इसके नीचे एक चूहा मरा हुआ पड़ा था और
इस चूहे के गले में वो प्लेटिनियम का बाला फंसा हुआ था। रात को वो बाजरे का आटा खाने आया और शौक में अपना मुंह धसाता हुआ इतनी दूर ले गया कि बाला इसके हलक में फंदा बन गया और फिर वो इसे पंजों की कोशिश के बावजूद निकाल या उतार न सका और इसका दम घुट गया। बड़ी मुश्किल के साथ इस सड़ी हुई लाश से वो बाला छुड़वाया गया और साले आपा को इत्मीनान नसीब हुआ, जो अल्लाह के फजल से अब तक है। शक व शुबा की दुनिया बड़ी अजीब व गरीब होती है और इस पर किसी का बस नहीं चलता। जब ये एक बार जहन में जाग जाती है तो इसका जहन से निकालना मुश्किल हो जाता है। नफ्सियात दान कहते हैं कि शक के निकलने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जो अप्लाई करके इंसान को इस शक व शुबे की अजियत से निजात दिला दे। अलबत्ता अल्लाह ज़रूर इस बात का हुक्म देता है कि तुम लोगों की टो में ना रहा करो। ये मत देखो कि इसके घर में क्या आया, इसको कौन मिलने आया, इसको छोड़ो, वो अल्लाह का बंदा है और अल्लाह ही पूछेगा। और तुम ज़्यादा तजस्सुस में ना पढ़ा करो, ये अल्लाह का हुक्म है। इसी तरह से जब आप शक में पड़ते हैं तो आप इस हुक्म को यकीनन छोड़ देते हैं जो बड़े वाज़े अंदाज में कैटेगोरिकली अल्लाह ने हम आप और सबको दिया है कि ऐसे सुन या जासूसी लेने के लिए और ऐसी CID करने के लिए मत जाया करो। अपनी जिंदगी के अंदर कोई CIA, कोई KGB ना बनाए, कोई मोसाद, कोई रॉ ना बनाए, वरना आपकी जिंदगी अजाब बन पड़ेगी। जिन मुल्कों में ऐसे इदारे बनाए हैं बज़ाहिर तो वो बहुत खुश हैं और इन पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म के इदारे इनको ऐसी उलझनों में मुब्तला कर देते हैं कि वो फिर इससे निकल नहीं सकते। शक के हवाले से मुझे बड़ी गुज़री बात याद आ रही है। जवानी में मुझे दरख्तों और पौधों के साथ बड़ा इश्क था। इस वक्त मेरे पास एक छोटी आरी हुआ करती थी जिससे मैं दरख्तों की शाखें काटता था और इनकी अपनी मर्जी के मुताबिक तराश खराश किया करता था। और हमारे हमसायों का एक बच्चा जो 5वीं 6ठी में पढ़ता होगा, वो इस विलायती आरी में बहुत दिलचस्पी लेता था। 1-2 मर्तबा मुझसे देख भी चुका था और इसे हाथ से छू कर भी देख चुका था। फरीदा जलाल हमेशा आपके साथ।